Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 2 का मॉड्यूल 3 डेमोक्रेसी एट वर्क लेसन 15 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया जो कि सिविक्स का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर अप करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to cover up next topic which is values and the silent features of the constitution. So let's start. The discussion on the preamble embodying constitutional values clearly demonstrates that these are important for the successful functioning of Indian democracy. Your understanding of these values will be further reinforced when you will find in the following discussion that constitutional values permeate all the salient features of Indian constitution. The main features of the constitution as shown in the illustration are as follows. तो हम लोगों ने पहले प्रस्तावना पे डिस्कशन कर रखा है, फिर हम लोगों ने संवैधानिक मूल्यों के बारे में पढ़ लिया है और ये सब एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और हमारे लिए सक्सेसफुल फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है इंडियन डेमोक्रेसी को। आप लोग जो भी मूल्य है उनके बारे में समझ गए होंगे कि वो मूल्य हमारे लिए, जो संवैधानिक मूल्य हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलिए हम लोग ये जो संवैधानिक मूल्य तो डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग जो हमारे संविधान है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो उनके मेन फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नीचे दिए गए हैं। हम लोग उसे एक एक करके पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। Written Constitution. As has been stated earlier, the Constitution of India is the longest written constitution. It contains a preamble, 395 articles in 22 parts, 12 schedules, and 5 appendices. It is a document of fundamental laws that define the nature of the political system and the structure and functioning of organs of the government. It expresses the vision of India as a democratic nation. It also identifies the fundamental rights and fundamental duties of citizens. While doing so, it also reflects core constitutional values. तो जैसा कि आपने देखा है पहले ही ये स्टेटेड मतलब ये पहले ही जाके लिखा जा चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। इसमें प्रीएम्बल्स है, फिर 395 आर्टिकल्स है जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 शेड्यूल्स एंड 5 अपेंडिसेस है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें फंडामेंटल लॉज लिखे गए हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफाइन करता है, एज वेल एज कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होगा और वो कैसे फंक्शन करेंगे। ये हमारे इंडिया के विजन को एक्सप्रेस करता है कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को और फंडामेंटल ड्यूटीज जितने भी सिटीजन्स के हैं उसे ये आइडेंटिफाइज करता है और ऐसा करने से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो एक हम लोग के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। हम लोग को सब कुछ उसी से पता चलता है। A unique blend of rigidity and flexibility in our day-to-day life. We find that it is not easy to bring about changes in a written document. As regards constitutions, generally written constitutions are rigid. It is not easy to bring about changes in them frequently. The Constitution lays down special procedure for constitutional amendments. In the unwritten Constitution, like the British Constitution, amendments are made through ordinary lawmaking procedure. The British Constitution is a flexible constitution. In the written constitution, like the US Constitution, it is very difficult to make amendments. The US Constitution, therefore, is a rigid constitution. However, the Indian Constitution is neither as flexible as the British Constitution nor as rigid as the US Constitution.
It reflects the value of continuity and change. There are three ways of amending the Constitution of India. Some of its provisions can be amended by the simple majority in the parliament and some by special majority, while some amendments require special majority in the parliament and approval of states as well. तो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम लोग देखते हैं कि जो भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोग कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो इजीली नहीं हो पाता है। और अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लेके देखें तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लिखा होता है और रिजिड होता है और उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस लाना थोड़ा मुश्किल की काम होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीड्यूर होते हैं, मीन्स कुछ स्पेशल तरीके होते हैं जिसमें उसमें सुधार लाया जा सकता है। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, मीन्स टाइम टू टाइम सुधार होते रहते हैं। कैसे होते हैं तो उसमें ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर के द्वारा। जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है कि आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे वो चेंज कर सकते हैं। एंड हमारा जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट होता है कि वहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट्स किया जा सके। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं हो पाते हैं। हाउएवर जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा फ्लेक्सिबल है और ना ही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा रिजिड है। और इसमें जो भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये कंटिन्यूटी रिफ्लेक्ट करता है और चेंज रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, हमारे यहाँ तीन तरीके होते हैं कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला जो है इसमें सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है। दूसरा कि कुछ स्पेशल मेजोरिटी होते हैं अमेंडमेंट्स के और जब तीसरा जो है उसमें स्पेशल मेजोरिटी होते हैं पार्लियामेंट के एज वेल एज स्टेट के। ठीक है, ये तीन तरीके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। You must be familiar with the term fundamental rights. We quite often find it in newspapers or while watching television. The Constitution of India includes these rights in a separate chapter which has often been referred to as the conscience of the Constitution. Fundamental rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. The Constitution guarantees the rights to individuals against the state as well as against other individuals. The Constitution also guarantees the rights of minorities against the majority. Besides these rights, the Constitution has provisions identifying fundamental duties, though these are not enforceable as the fundamental rights are. These duties reflect some of the basic values embodied in the Constitution. तो जो फंडामेंटल राइट्स के जो टर्म है आप उससे पहले ही परिचित हो चुके होंगे। कभी कभी आप इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़े होंगे, कभी टीवी में देखा होगा। ये जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक अलग ही चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स के जितने भी उनके खुद के अधिकार है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स भी देता है माइनॉरिटीज का, मीन्स जो छोटे ग्रुप में लोग हैं या फिर जिनकी जातियां छोटी है उनके राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है। किसके खिलाफ में? तो मेजोरिटी के खिलाफ में, मीन्स जो ज्यादा संख्या में है। ठीक है, और इन सब के अलावा जो राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पास एक प्रोविजन भी है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज भी देता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज उतना इनफोर्सेबल नहीं है, मीन्स आपको उससे जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जाएगा जैसे कि फंडामेंटल राइट्स करवाया जाता है। ठीक है, ये जो ड्यूटीज है वो कुछ बेसिक वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। Directive principles of state policy. In addition to fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of State Policy. It is a unique feature of the Constitution. It is aimed at ensuring greater social and economic reforms and serving as a guide to the state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses and eliminate social discrimination. In fact,
As you will study in the lesson on India, a welfare state, these provisions are directed towards establishment of a welfare state. तो इन सब के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेक्शंस भी है। उस सेक्शन को क्या बोला गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें यूनिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में और इसका एम क्या है कि ये इंश्योर करता है सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। ठीक है, जो भी हमारे स्टेट में होते हैं उसे ये रिफॉर्म करता है। जो भी स्टेट के इंस्टीट्यूट लॉज है, पॉलिसीज है, जो गरीबी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और साथ में जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, मीन्स सामाजिक आधार पे भेदभाव किए जा रहे हैं, उसे एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट आपका एक लेसन आएगा इंडिया वेलफेयर स्टेट, इसमें आप इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट क्यों है एज अ वेलफेयर स्टेट, आप उसके बारे में पढ़ोगे और जानोगे। Integrated judicial system. Unlike the judicial systems of federal countries like the United States of America, the Indian Constitution has established an integrated judicial system. Although the Supreme Court is at the national level, high courts at the state level, and subordinate courts are at the district and lower level, there is a single hierarchy of courts. At the top of the hierarchy is the Supreme Court. This unified judicial system is aimed at promoting and ensuring justice to all the citizens in uniform manner. Moreover, the constitutional provisions ensure the independence of Indian judiciary, which is free from the influence of the executive and the legislature. तो जैसा कि हम अपने जुडिशियल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक फेडरल कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, उसमें हम लोग का जैसे जुडिशियल सिस्टम है, वैसे ही हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को स्टैब्लिश किया है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो नेशनल लेवल पे है, हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल पे है एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पे है। ठीक है, और ये एक सिंगल हियरार्की है कोर्ट्स का, और टॉप लेवल पे कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। और ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसका क्या एम है कि ये प्रोमोट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, सबको इक्वली जस्टिस मिल सके। इन सब के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ये हमारे इंडियन जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करता है, जो कि ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग है। Single citizenship. Indian Constitution has provision for single citizenship. Do you know what does it mean? It means that every Indian is a citizen of India, irrespective of the place of her residence or birth in the country. This is unlike the United States of America, where there is a system of double citizenship. A person is a citizen of a state where she lives, as well as she is a citizen of USA. This provision in the Indian Constitution definitely reinforces the values of equality, unity and integrity. जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें एक प्रोविजन बनाया गया है सिंगल सिटीजनशिप का। क्या आप इसके अर्थ को समझ पाए? इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो भारत के ही नागरिक है, चाहे वो किसी भी जगह पे रहते हो और किसी भी जगह से वो जन्म लिए हो। ठीक है, वो देश के किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, वो सब भारत के ही नागरिक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां पर डबल सिटीजनशिप लेना पड़ता है। पहला जो वहां के नागरिक है वो जिस स्टेट में रहते हैं वहां के उनको सिटीजनशिप लेना पड़ता है, एज वेल एज वो यूएसए के सिटीजन है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेफिनेटली हम लोग को सिंगल सिटीजनशिप से ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इक्वल है, हमारे में यूनिटी और इंटीग्रिटी है। Universal adult franchise. The values of equality and justice are reflected in yet another salient feature of the Constitution. Every Indian, after attaining certain age, at present 18 years, has a right to vote. No discrimination can be made on the basis of religion, race, caste, sex, descent, and place of birth or residence. This right is known as universal adult franchise. तो हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और है वैल्यू, वो है इक्वालिटी और जस्टिस का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलेंट फीचर है,
जितने भी भारतीय जिन्होंने एक सर्टेन एज को अटेन कर लिया, मीन्स अभी प्रेजेंट में 18 इयर्स चल रहा है, ठीक है, उनके पास अधिकार होता है कि वो वोट देंगे। उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मीन्स वो फीमेल है या मेल है, सेक्स के नाम पे, या फिर किस जगह से वो जन्म लिए है, या फिर कहाँ पे वो रहते हैं, ये सब कुछ भी नहीं आएगा। वो वोट करेंगे जब वो 18 या उससे अबव के होंगे। एंड इस राइट को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। Federal system and parliamentary form of government. Another salient feature of the Indian Constitution is that it provides for a federal system of state and parliamentary form of government. We shall discuss this below in detail, but it is necessary to note here that the federal system reflects the constitutional value of unity and integrity of the nation, and more importantly, the value of decentralization of power. The parliamentary form of government reflects the values of responsibility and sovereignty vested in the people. The core principle of a parliamentary government is the responsibility of the executive to the legislature consisting of all the representatives of the people. हमारा भारतीय संविधान का एक और फीचर है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमें फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। हम लोग इसके बारे में नीचे डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन हमें ये नोट करना जरूरी है कि जो फेडरल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो भी यूनिटी और इंटीग्रिटी है हमारे नेशन का उसे रिफ्लेक्ट करता है, और इस सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पावर को डिसेंट्रलाइज करता है। ये कैसे करता है हम लोग इसे नीचे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सॉवरेनिटी जो भी पीपल में है उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। और ये जो प्रिंसिपल है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी हमारा लेजिस्लेचर है और जो भी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 15.3। Federal system in India. As you may have found, whenever there is a discussion on the nature, structure, and processes of political system in India, it is said that India is a federal state. There are generally two types of states in the world. The state that has only one government for the entire country, which is known as unitary state. The United Kingdom has a unitary system, but there are states like United States of America and Canada which have governments at two levels, one at the central level and the other at the state level. Besides having two sets of government, a federal system must have three other features: a written constitution, divisions of power between the central government and the state governments, and supremacy of judiciary to interpret the constitution. India also has a federal system having all these features, but with a difference. Let us examine the nature of the Indian Federation. तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बात की जाती है, डिस्कशन की जाती है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का उसकी नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप क्या पाओगे, सब लोग यही बोलेंगे कि जो इंडिया है वो एक फेडरल स्टेट है, ठीक है। और जनरली टू टाइप्स के स्टेट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होते हैं पूरे कंट्री के लिए, जिसे यूनिटरी स्टेट बोलते हैं। जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम चलता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो कनाडा है यहाँ पे टू लेवल्स पे गवर्नमेंट्स काम करते हैं, एक सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल पे, ठीक है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट के टू सेट्स होते हैं फेडरल सिस्टम में, और इनकी कुछ तीन अलग फीचर्स भी होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कि यहाँ पे जो पावर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और तीसरा क्या है कि जो जुडिशियरी है वो उनका सुप्रीमेसी होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंडिया भी फेडरल सिस्टम है इंडिया में, और इंडिया के पास ये सारे फीचर्स है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। चलिए हम लोग अपने इंडियन फेडरेशन के नेचर को एग्जामिन करते हैं। Characteristics of the Indian federal system. Two-tier government. You must have heard that there are two sets of government created by the Indian Constitution. One for the entire nation called the Union government,
or central government, and another for each unit or state called a state government. Sometimes you may also find the reference of a three-tier government in India because besides the union and state governments, local governments, both rural and urban, are also said to constitute another tier. But constitutionally, India has a two-tier government. The constitution does not allocate separate sets of powers to the local governments as this continues to be under their respective state governments. तो हमारे इंडिया में टू टियर गवर्नमेंट है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसने दो सेट्स तैयार किए हैं, एक पूरे नेशन के लिए जैसे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, और दूसरा यूनिट है स्टेट के लिए, ठीक है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपको रेफरेंस मिलता होगा कि इंडिया में थ्री टियर गवर्नमेंट है, क्योंकि इन सब के अलावा जो यूनियन है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके अलावा लोकल गवर्नमेंट्स भी होते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, ठीक है, रूरल एंड अर्बन, ये भी अनदर टियर फॉर्म करते हैं। लेकिन जो हमारा संविधान है उसने बस दो ही टियर गवर्नमेंट का बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सेपरेट लोकल जो गवर्नमेंट है उसको ये एलोकेट नहीं करता है, क्योंकि ये जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में काम करता है। Division of powers. Like other federations, both the union and the state governments have a constitutional status and clearly identified area of activity. The constitution clearly divides the powers between the two sets of governments so that the center and the state exercise their powers within their respective spheres of activity. None violates its limits and tries to encroach upon the functions of the other. The division has been specified in the Constitution through three lists: the Union list, the State list, and the Concurrent list. The Union list consists of 97 subjects of national importance such as defense, railways, post and telegraph, etc. The state list consists of 66 subjects of local interest such as public health, police, local self-government, etc. The concurrent list has 47 subjects such as education, electricity, trade, union, economic and social planning, etc. On this list, both the union government and state governments have concrete jurisdiction. However, the Constitution assigns those powers on the subjects that are not enumerated under Union list, State list, and Concurrent list to the Union government. Such powers are known as residuary powers. If there is any dispute about the division of powers, it can be resolved by the judiciary on the basis of the constitutional provisions. तो अब हम लोग देखेंगे हम लोग का पावर का जो डिवीजन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। अदर फेडरेशन में क्या होते हैं, जो यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनके पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, जिसमें उनके पास किस तरह का वो एक्टिविटी करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली पावर्स को डिवाइड करता है दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, एक सेंटर हो गया और दूसरा स्टेट हो गया, ठीक है, और उनका जो भी एक्टिविटी होता है वो इन अपने पावर के आधार पे करते हैं। उनके पास जो भी लिमिट्स होता है और वो कोई भी फंक्शंस करते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे करते हैं। ये जो डिवीजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इनके तीन लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है, जैसे कि नेशनल इंपॉर्टेंस उनका जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया। स्टेट लिस्ट के पास 66 सब्जेक्ट्स है लोकल इंटरेस्ट के, जैसे कि पब्लिक हेल्थ है, पुलिस के ऊपर हो गया, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। फिर हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट आता है इसमें 47 सब्जेक्ट्स है, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इस टाइप से हमारा डिवीजन हुआ। ये जो लिस्ट है यूनियन गवर्नमेंट का एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसमें कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन भी है
लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे पावर को असाइन भी करते हैं जो कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं, और ये पावर को हम लोग रेसिडुअरी पावर्स के नाम से जानते हैं। अगर इनके बीच में पावर के डिवीजन में कोई भी झगड़े होते, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसे जुडिशियरी के द्वारा रिजॉल्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मीन्स जो भी हमारे संविधान में प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं उसके आधार पे यहाँ पे हमारे रिजॉल्वेंट किए जाते हैं झगड़े के। Written constitution. As we have earlier seen, India has a written constitution which is supreme. It is also the source of power for both the sets of governments, the union and the state. These governments are independent in their spheres of governance. Another feature of a federation is the rigid constitution. Although the Indian constitution is not as rigid as the US constitution, it is not a flexible constitution as mentioned earlier. It has unique blend of rigidity and flexibility. तो हम लोगों ने जैसा कि पहले ही देख चुका है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सबसे ऊपर होता है, मतलब ये सुप्रीम है। और इसमें ऐसे सोर्स भी है पावर के जो कि दो सेट्स ऑफ गवर्नमेंट को तैयार करते हैं, एक है यूनियन लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। ये जो गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट है गवर्नेंस करने के, मीन्स ये अपनी सरकार चलाने के लिए इंडिपेंडेंट है। हमारे फेडरेशन का एक अनदर फीचर भी है, वह है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा रिजिड भी नहीं है, साथ में ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। जैसा कि पहले मेंशन किया जा चुका है, इसमें एक यूनिक ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। Independence of judiciary. Another very important feature of a federation is an independent judiciary to interpret the constitution and to maintain its sanctity. The Supreme Court of India has the original jurisdiction to settle disputes between the Union and the states. It can declare a law as unconstitutional if it contravenes any provision of the Constitution. The judiciary also has the powers to resolve disputes between the Union government and the state governments on the constitutional and legal matters related to the divisions of powers. तो हमारे फेडरेशन का एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेटेड है और ये अपने सैंक्टिटी को मेंटेन करके रखता है। ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो ओरिजिनल जुडिस्ट्रिक्शन देता है और ये जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करते हैं यूनियन और स्टेट्स के बीच में। और ये जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी डिक्लेरेशन होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कॉन्ट्रोवर्सी को ये शांत करता है। हमारा जो जुडिशियरी है उसके पास पावर्स होते हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स पे डिवीजन ऑफ पावर्स जैसे कि रिलेशन हो गया इसमें, तो इसे कौन शांत करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। Indian federal system with a strong center. In a view of the above provisions, the Indian system appears to have all the features of a federal system. But have you gone through a statement which says that India is federal in form but unitary in spirit? In fact, Indian federal system has a strong union government. This was deliberately done in the context of the prevailing situation on the eve of independence and in view of the socio-political situation. Apart from India being a vast country of continental dimensions, it has diversities and social pluralities. The framers of the constitution believed that we required a federal constitution that would accommodate diversities and pluralities. But when India attained independence, it was faced with challenges like maintaining unity and integrity and bringing about social, economic, and political change. It was necessary for the center to have such powers because India at the time of independence was not only divided into provinces created by the British, but it also had more than 500 princely states which had to be integrated into existing states or new states had to be created. तो हम लोगों ने ऊपर में जो भी प्रोविजंस देखे, हमारा जो इंडियन सिस्टम है इन सभी के फीचर्स हम लोगों ने देखे, तो वो हम लोग देख लिए कि कैसे ये एज अ फेडरल सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप एक स्टेटमेंट के
थ्रू जाओ। जो इंडिया है वो फेडरल है, लेकिन ये यूनिटरी है स्पिरिट में। तो ये क्या है? इनफैक्ट जो हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग यूनियन गवर्नमेंट है, और ये हम लोग डेलिबरेटरी अगर हम लोग देखें इस कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंस है और उस टाइम का जो भी सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन था इंडिपेंडेंस के टाइम में, वो किस प्रकार का था। इन सब के अलावा जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है जिसमें कॉन्टिनेंटल डायमेंशंस है, इसमें अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज है एंड सोशल प्लुरलिटीज है, मीन्स हमारे समाज भी बटे हुए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्हें ये बिलीव था कि हम लोगों को एक ऐसा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो इन डाइवर्सिटीज और प्लुरलिटीज को एक साथ ला सके। जब हमारा भारत आज़ादी जब अटेन कर रहा था, मीन्स उसे जब आज़ादी मिली, तो उसके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि हम लोग में एक साथ एकता लाना, फिर हम लोग किस प्रकार से सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज लाते हैं अपने में, और ये हमारे लिए ज़रूरी था कि हमारा जो भी पावर है हमारे इंडिया का वो एक सेंट्रल में हो, मीन्स एक सेंटर देखे हम लोग का इंडिपेंडेंस के टाइम में। और साथ में हमारा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था उस टाइम जो भी ब्रिटिश ने यहाँ पे प्रोविंसेस क्रिएट किए थे, उनका जो डिवीजन किया था, उस टाइम करीब 500 प्रिंसली स्टेट्स मीन जहाँ पे राजाओं के द्वारा उस टाइम राज किया जा रहा था, उन सब स्टेट्स को इन्हें इंटीग्रेट करके न्यू स्टेट्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि एक एग्जिस्टिंग स्टेट्स को क्रिएट किया गया, जिससे हमारा जो इंडिया है वो आज हमें एक फेडरल सिस्टम के रूप में दिख रहा है। In fact, the central government has been made strong deliberately. Besides the concern for unity, the makers of the constitution also believed that the socio-economic problems of the country needed to be handled by a strong central government in cooperation with the states. Poverty, illiteracy, social inequalities, and inequalities of wealth were some of the problems that required unified planning and coordination. Thus, the concerns for unity and development prompted the makers of the Constitution to create a strong central government. Let us look at the important provisions that have created a strong central government. हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, और इन सब के अलावा हमारे में यूनिटी है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्हें ये बिलीव था कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कंट्री का, उसे एक हैंडल करने वाला चाहिए, मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर पाएगा, जो कि स्टेट्स के कॉपरेशन के साथ करेगा। हमारा जो भी पॉवर्टी है मीन्स गरीबी, फिर एक है इलिटरेसी, फिर सोशल इनक्वालिटीज मीन्स हम लोग का जो सामाजिक असमानता है हम लोग में, फिर हमारी जो संपत्ति की जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का उसमें भी इनक्वालिटीज है। ये सब जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अभी भी सॉल्व करना बाकी है, और इसे एक यूनिफाइड प्लानिंग के द्वारा कोऑर्डिनेशन के द्वारा इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। साथ में जो हमारे यूनिटी को कंसर्न में रखते हुए हमारा जो डेवलपमेंट है किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का क्रिएशन किया, मीन्स उसे क्रिएट किया है। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को देखें कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो है क्या। The first article of the Constitution itself hints at Indian federal system being different. It states that India shall be a union of states. Now, where does the Constitution describe India as a federal state? The central government has sole power on the territory of India. The very existence of a state, including its territorial integrity, is in the hands of the Parliament. The Parliament is empowered to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states. It can also alter the boundary of any state or even its name. However, the Constitution provides for some safeguards. The central government must secure the view of the concerned state legislature on such decisions. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट आर्टिकल है वो कुछ हमें हिंट करता है कि जो इंडिया है वो एक फेडरल सिस्टम है, लेकिन ये डिफरेंट होगा। ये भी बोलता है कि इंडिया जो है वो यूनियन होगा स्टेट्स का, मतलब जितने भी स्टेट्स होंगे वो यूनिफाइड होंगे, एक साथ होंगे। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है पूरे इंडिया का, ठीक है, और जो स्टेट है उसमें ऐसे बहुत सारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है जो कि पार्लियामेंट के हाथ में है। हमारा जो पार्लियामेंट है वो
एक न्यू स्टेट को सेपरेट करके बना है, या फिर कोई भी ऐसा स्टेट जिसको यूनाइट करके दो या दो से अधिक स्टेट बनाया गया है, उसमें इसका निर्माण होता है हमारे पार्लियामेंट का। और हमारा जो बाउंड्री है किसी भी स्टेट का या नेम का, ये एक एल्टर है। इन सब के अलावा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं तो ये हम लोग को एक सेफ गार्ड्स को प्रोवाइड करता है। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिक्योर है। हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऐसे डिसीजंस के कंसर्न है, मीन्स ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। Secondly, the division of powers is in favor of the union government. The union list contains all the key subjects. Besides, even in relation to the concurrent list, the constitution has assigned precedence to the center over states. In the situation of a conflict between laws made on any subject of the concurrent list by a state and also by the parliament, the law made by the parliament would be effective. The parliament may legislate even on a subject in the state list if the situation demands that the central government is to legislate. This may happen if the move is ratified by the Rajya Sabha. तो हम लोग दूसरा देखें तो हमारा जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो यूनियन गवर्नमेंट के फेवर में है। हमारा जो यूनियन लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स है वो लिस्ट किए गए हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट को देखें, जो इनका रिलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन से कैसा है। तो ये सेंटर स्टेट्स के ऊपर जो सेंटर है उनके साथ में हमारा कॉन्फ्रेंस लिस्ट जाता है। इस सिचुएशन में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं लॉज में या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे कॉन्फ्रेंस लिस्ट में, तो वो स्टेट देखता है और साथ में पार्लियामेंट देखता है। हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉ भी बनाता है और उसे प्रभाव में भी लाता है। हमारा जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो लेजिस्लेट करता है किसी भी सब्जेक्ट पे स्टेट लिस्ट के, एंड साथ में अगर उसे कोई भी ऐसा सिचुएशन जब साथ में आता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस लेजिस्लेट को देखता है। और ये कब होता है? जब राज्यसभा साथ में आता है। थर्डली, द फेडरल प्रिंसिपल envisages a dual system of courts, but in India we have unified or integrated judiciary with the Supreme Court at the apex. जो फेडरल प्रिंसिपल होता है जिसमें डुअल सिस्टम होते हैं कोर्ट्स के, लेकिन इंडिया में हम लोग यूनिफाइड है और हमारा जो जुडिशियरी है वो इंटीग्रेटेड है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात को ही मानते हैं। Fourthly, the union government becomes very powerful when any of the three kinds of emergencies are proclaimed. The emergency can turn our federal polity into a highly centralized system. The parliament also assumes the power to make laws on subjects within the jurisdiction of the states. In yet another situation, if there are disturbances in any state or part thereof, the union government is empowered to depute central force in the state or to the disturbed पार्ट ऑफ द स्टेट। तो हम लोग अगर चौथा पॉइंट देखते हैं तो हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है जब उसके पास 3 प्रकार के इमरजेंसीज को प्रोक्लेम किया जाता है। ये जो इमरजेंसी है वो हमारे फेडरल पॉलिटी को हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम में चेंज भी कर सकता है। हमारा जो पार्लियामेंट है वो ये अज्यूम करता है कि जो भी पावर है या फिर जो भी लॉज है, सब्जेक्ट्स है, वो जुडिस्ट्रिक्शन जो भी स्टेट्स के जुडिस्ट्रिक्शन है उनके साथ ही जाएगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब किसी भी स्टेट में कोई डिस्टरबेंसेस हो जाए तो यूनियन का जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल फोर्स को स्टेट में लागू करेगा। जिस भी स्टेट में कोई भी पार्ट जहाँ पर डिस्टर्ब है वहां पे अपने सेंट्रल फोर्स को लागू करता है। As you will study in the lesson on governance at the state level, the governor of the state is appointed by the President of India, that is the union government. She has powers to report to the president if there is a constitutional breakdown in the state and to recommend the imposition of president's rule. When the president's rule is imposed on the state council of ministers is dismissed and the governor rules over the state as a representative of the central government. The state legislature also may be dissolved or kept in suspended animation. Even in normal circumstances, the governor has the power to reserve any bill passed by the state legislature for the assent of the president. This gives the central government an opportunity to delay the state legislation and also to examine such bills and veto them completely. तो आप जैसा कि गवर्नेंस एट स्टेट लेवल पे पढ़ने वाले हो कि जो गवर्नर है स्टेट के वो इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है,
ही शी मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट होंगे उनके पास पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने के, गवर्नर जो भी होंगे, और इनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जब होता है स्टेट में, तो ये प्रेसिडेंट्स के रूल को रिकमेंडेट करते हैं। ठीक है, जब प्रेसिडेंट का जो रूल है इम्पोज किया जाता है स्टेट में, मीन्स लागू किया जाता है, तो जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें डिसमिस किया जाता है गवर्नर के रूल से, और जो भी स्टेट है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके वो बात करेंगे। हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाता है। जब कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कोई भी ऐसी घटना होती है, तो हमारे जो गवर्नर है उनके पास एक पावर होता है कि वो किसी भी बिल को पास करे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा प्रेसिडेंट के थ्रू। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो स्टेट लेजिस्लेशन को डिले करें और साथ में जो ऐसे बिल्स आते हैं उसे पहले एग्जामिन करें, उसके बाद उसे पास करें। The central government has very effective financial powers and responsibilities. In the first place, items generating revenue are under the control of the center. The states are mostly dependent on the grants and financial assistance from the central government. Moreover, India has adopted planning as the instrument of rapid economic progress and development after independence. Thus, also had led to considerable centralization of decision making. तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास एक फाइनेंशियल पावर्स या फिर बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं जो कि इफेक्टिव तरीके से होते हैं। फर्स्ट प्लेस में कि जो भी रेवेन्यू होता है वो सेंटर के कंट्रोल में होता है। जो स्टेट्स है वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं और उनके पास जो भी फाइनेंशियल ग्रांट मिलते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। इन सब के अलावा इंडिया के पास जो भी प्लानिंग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के, इंडिपेंडेंस के बाद, वो सारे पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ये एक जो भी सेंट्रलाइजेशन होता है, जो भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेते हैं, वो सबसे हम लोग टॉप लेवल पे देखते हैं उसे। Finally, according to the constitutional provisions, the executive powers of the center are superior to those of the states. The central government may choose to give instructions to the state government. Moreover, we have an integrated administrative system. The All India services are common for the entire territory of India, and officers chosen for these services serve in the administration of the states. Thus, an IS officer who becomes the collector or an IPS officer who serves as the commissioner of police are under the control of the central government. States cannot take disciplinary action, nor can they remove these officers from service. फाइनली हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है सेंटर का वो स्टेट से सुपीरियर है, मीन्स स्टेट से सबसे ऊंचा है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के अलावा इनके पास इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि पूरे टेरिटरी के लिए कॉमन होता है, और हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन सर्विस के लिए चूज किए जाते हैं जो हमारे स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेट कर सके। जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो कलेक्टर बनते हैं, एंड जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के जैसा सर्व करते हैं, एंड ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कंट्रोल होते हैं। जो स्टेट्स जो गवर्नमेंट है वो इन सब के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते और ना ही इन ऑफिसर्स को उनके सर्विस से रिमूव कर सकते हैं। From the above discussion, it is clear that there is a tilt in favor of the center at the cost of the states. The states have to work in close cooperation with the center. This has lent support to the contention that the Indian constitution is federal in form but unitary in spirit. Constitutional experts have called it a semi-federal or a quasi-federal system. तो हम लोगों ने ऊपर में जो भी डिस्कशन किया उससे हम लोगों को क्लियर व्यू मिल चुका है कि हमारा जो सेंटर और जो स्टेट्स है उसमें एक झुकाव हुआ हमारे सेंटर की ओर से कि ये जो भी हम लोग देखते हैं तो सेंटर की ओर ज्यादा फेवर है स्टेट गवर्नमेंट्स के हिसाब से। हमारा जो स्टेट है उसे क्लोजली कोऑपरेट करना पड़ता है सेंटर के साथ में, और जिससे जो भी सपोर्ट मिलता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो हमारा फेडरल है लेकिन यूनिटरी इन स्पिरिट है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स है वो इस चीज को क्या बोलते हैं, सेमी फेडरल या फिर क्वासी फेडरल सिस्टम।
इंडियन फेडरल सिस्टम नहीं बोल के इन्हें सेमी फेडरल या फिर क्वासी फेडरल सिस्टम बोलते हैं। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.